Look, friend, दोस्तों देखिए, what am I driving at? मैं कहाँ जाता हूँ। You know, people who get offended over little. ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, What kind of Christians are they? वो कैसे मसीही हैं? Have you never read Matthew 10 chapter? क्या आपने कभी मत्ती 10वां अध्याय नहीं पढ़ा? All right, let me see the hands of all those who read Matthew 10 chapter. जिन्होंने भी यहाँ पे मत्ती 10वां अध्याय पढ़ा है, अपने हाथों को खड़ा करें। Come on. खड़ा करें। Many of you, all of you have read Matthew 10 chapter. बहुतों ने, सभी ने मत्ती 10वां अध्याय पढ़ा है। What did Jesus say? प्रभु यीशु ने क्या कहा? If they have called the master of the house Beelzebub, अगर उन्होंने घर के स्वामी को बीलजेबुल कहा, how much more, what else they would call you? तो तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। How sad कितने दुख की बात है that Christians don't even read their Bible कि मसीही लोग अपनी बाइबल भी नहीं पढ़ते and get offended over little things. और छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। Let me tell you, मुझे बताने दीजिए, I have no time for little things. छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं। I tell people, abuse me, do what you like, spit in my face if you want. मैं लोगों को कहता हूँ कि कुछ भी मेरे साथ करो, थूको, मारो, गाली दो। I have a king to serve. मेरे सामने एक राजा है जिसकी मुझे सेवा करनी है। I have his will to promote. उसकी इच्छा को मुझे बढ़ाना है। I have his kingdom to build. उसके राज्य को मुझे बनाना है। All these flea bites, ant bites, all bites, I don't care. ये छोटे छोटे चींटी के काटना, मक्खी मच्छर के काटने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Perverse spirit. टेढ़ेपन की आत्मा Everywhere. चारों तरफ हम देखते हैं। Perverse. टेढ़ेपन की आत्मा। Somebody said something अरे किसी ने कुछ कहा and you weep. और आप रोते हो। Why don't you save your tears for sinners? To weep over sinners. क्यों अपने आंसुओं को पापियों के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए नहीं बचाते? How sad. कितने दुख की बात है। Perverse spirit. टेढ़ेपन की आत्मा। Here, यहाँ हम देखते हैं, can't my tongue discern? क्या मेरी जीभ इस बात को जांच नहीं Can't सकती? your spirit discern? क्या तुम्हारी आत्मा जांच पाती है? This is the temptation of the devil. क्या ये शैतान का परीक्षा है? This is a peg of the devil trying to tie me up to this spot. ये शैतान का फंदा है मुझे फंसाने के लिए, बांधने के लिए। I am not going to yield to this. मैं इसमें फंसूंगा नहीं। Just a little easy course to take. एक छोटा सा आसान रास्ता। My dear friend, मेरे प्यारे लोगों, I am very afraid of easy course. मैं आसान रास्ते से बहुत डरता हूँ There is danger there. क्योंकि उसमें खतरा छिपा है। When something appears green, जब कोई चीज बड़ी हरियाली भरी नजर आती है, inviting and easy, जो आसान रास्ते को बताती है, there is danger there. तो उसमें खतरा छिपा है। The narrow way, जो सकरा पथ है, रास्ता है, few there be that go in. थोड़े ही लोग उस पे जाते हैं। That's what the Lord Jesus said. प्रभु यीशु ने ऐसा कहा। So, इसलिए if you turn to Numbers chapter 22, गिनती और 22वां अध्याय, Numbers is the book before Deuteronomy, व्यवस्था विवरण से पहले गिनती की किताब, and the 32nd verse, और उसका 32वां पद, this is what you will see. यहाँ आप देखेंगे। Numbers 22 गिनती और उसका 22वां अध्याय, and 32. 32वां पद। And the angel of the Lord said unto him, यहोवा के दूत ने उससे कहा, Wherefore hast thou smitten your ass these 3 times? तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? Behold, I went out to withstand you, सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, because your way is perverse before me. इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। Your way is perverse before me. तेरी चाल मेरे सामने उल्टी है, So I have gone out to withstand you. इसलिए तेरा विरोध करने में आया हूँ। What?
क्या Must God send an angel to withstand us? क्या परमेश्वर को हमारा विरोध करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजने की जरूरत है? This foolish man is going to hurt my kingdom. ये मूर्ख व्यक्ति मेरे राज का नुकसान करता है। He is called a servant of God. He is called a preacher and a great preacher and all that. ये तो परमेश्वर का दास और बड़ा प्रचारक कहा जाता है, But he is going to eventually hinder the cause of Jesus. लेकिन असल में प्रभु यीशु के राज्य का ये नुकसान करता है। So is God going to send an angel? Has he to send an angel क्या परमेश्वर को एक स्वर्गदूत भेजने की जरूरत है to stand against you? जो आपके विरोध में खड़ा हो? I do hope God will never have to do that towards this fellowship. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर को इस सहभागिता के विरोध में ऐसा करने की कभी जरूरत ना पड़े। My dear friend, मेरे प्यारे लोगों, watch your words. Watch your words. अपने शब्दों पर, अपने वचनों पर ध्यान दें। You know, when people start repeating things like a stuck record, जब लोग बातों को दोहराते रहते हैं एक अटके हुए टेप रिकॉर्डर के समान, I get tired. मैं थक जाता हूँ। By the grace of God, God has given me rabbit's ears, as my children say. जैसे मेरे बच्चे कहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने खरगोश जैसे कान पाए हैं। I can hear almost anything that's going on. आसपास की सारी बातों को मैं सुन पाता हूँ। That's not a very helpful thing. लेकिन कोई बड़ी अच्छी बात ये नहीं है। But लेकिन I hate to hear मुझे नफरत है अधिक सुनने से। people who talk their heads off. ऐसे लोग जो लगातार बोलते रहते हैं। I like to be still before God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना चाहता हूँ। Some people who don't have the spirit of prayer, कुछ लोग जिनके पास प्रार्थना की आत्मा नहीं, they can never allow that kind of stillness around them. तो अपने चारों ओर उन्हें ऐसी शांति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। I need that stillness to hear God. लेकिन मुझे वो शांति चाहिए ताकि मैं परमेश्वर को सुन सकूं। Because my ears are distracted by too many other things. क्योंकि ऐसी बहुत सी आवाजों के द्वारा मेरा मन भटकता है। So I tell my wife sometimes, इसलिए कई बार मैं अपनी पत्नी से भी कहता हूँ, Lily, please be silent. लिली आप कृपया शांत रहिए। Yes, हाँ, I do not know who is the person around you मुझे नहीं पता that disturbs the stillness. कौन आपके पास ऐसा व्यक्ति है जो आपकी शांत वातावरण को खराब करता Be है। careful. सावधान रहें। If you are not walking with God, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, there will be a disturbance in your own heart. तो आपका हृदय बड़ा ही विचलित रहेगा। A perverse spirit can take hold of you. एक टेढ़ेपन की आत्मा आपके ऊपर हावी हो See, सकती है। actually, covetousness is guiding this prophet. असल में जो भविष्यवक्ता था ये लालच के द्वारा चलाया जा रहा था। He was a very questionable character, बड़ा अजीब सा ये व्यक्ति था, but his end was terrible. लेकिन उसका अंत बड़ा खतरनाक और भयानक हुआ। And you know, a perverse spirit began to overpower him. और एक टेढ़ेपन की आत्मा ने उस भविष्यवक्ता को काबू में ले There लिया was a mixture और एक खिचड़ी बन गई। of covetousness and greed. लालच और लोभ की खिचड़ी बन गई। There was the respect of person. एक व्यक्ति को आदर देने वाली उस चीज आ गई। When bigger and bigger men were sent to him, और जब बड़े बड़े लोग उसके पास भेजे गए so that he may do the bidding of the king, ताकि वो राजा की बात को माने, to come and curse Israel, इजराइल के लोगों को वो शाप दे, this man who was originally told that he should not go, और जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मना किया था कि वो ना जाए, he somehow wangled his way और वो कैसे न कैसे उन लोगों के साथ चल दिया and was on his way to the king Balak. और बालक राजा के पास वो पहुंचा। The intentions of Balak और जो राजा बालक था were evil,
उसकी जो योजना थी वो बुरी थी, They were contrary to the will of God. परमेश्वर के विरोध की इच्छा वाली योजना। I don't know what your attitude is towards your loved ones, your children, your relatives. मुझे नहीं पता आपका नजरिया कैसा अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों वालों के लिए, But let me tell you my own experience. लेकिन मुझे अपना खुद का अनुभव बताने दीजिए। God blessed me very much in that. परमेश्वर ने मुझे इस रीति से बहुत आशीषित किया है। Nobody tried to pervert my way. कोई मेरे रास्तों को टेढ़ा करने की None of कोशिश नहीं these की, relatives कोई भी रिश्तेदार ने ऐसी or कोशिश नहीं senior people. की, ना बड़े लोगों ने। It's amazing. बड़ी अद्भुत बात है। And I made the will of God the one pursuit of my life. और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मैंने अपना मकसद बनाया। Now if my wife had dragged her feet, अगर मेरी पत्नी अपने पाँव को बीच में लाई, if she had said, "Oh, what you have done is good enough, you have done a lot. अगर वो मुझसे कहे कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, काफी कुछ कर लिया है, Now you had better stay home. अब आप आराम से घर में रहो, Now you have to take it easy. आप आराम से आराम करो, Now your condition does not warrant such worldwide journey. और आपकी हालत अब ऐसी नहीं कि आप दुनिया भर में जाके प्रचार करो। Now my wife did not hinder me. लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसे मुझे नहीं रोका, On the contrary, बल्कि दूसरी ओर she helped me मेरी मदद की again and again बार बार, when I was hesitant or when I was slow. जब मैं किसी चीज में रुकता था या धीरे होता था। उसने कहा, It is time that this matter is finished. ये समय हो गया इस काम को पूरा करने के लिए। The headquarters hall is one in point जो हेडक्वार्टर का हॉल है वो एक बड़ा पॉइंट है, because क्योंकि I was putting it off. क्योंकि मैं उसे टाल रहा था। It was a big project, a very expensive project with no money. क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, वो एक बड़ा कार्य था बनाने के लिए, And I was far too busy with the centers all around. और दुनिया भर के सेंटर्स के लिए मैं बहुत व्यस्त था। But my wife helped लेकिन मेरी me. पत्नी ने कहा, She said, उसने कहा, well, if you don't do it now, when are you going to do it? अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? Now, of course, the headquarters hall is not adequate anymore. और जो हेडक्वार्टर का हॉल था वो अभी भी पर्याप्त नहीं था। It's unfortunate that we can't buy the neighbor's place. दुख की बात है कि हम पड़ोस की जगह को हम नहीं खरीद पाए, However, लेकिन फिर भी you know, a wife can hinder. एक पत्नी है वो आपके कार्य में रुकावट बन सकती है, A husband can hinder. एक पति रुकावट बन सकता है, A child, a daughter, a son can hinder. एक बेटा या बेटी रुकावट बन सकता है, A son, a daughter can promote. एक बेटा या बेटी आगे बढ़ाने वाला बन सकता है, When you have the right spirit. अगर एक सही आत्मा आपके भीतर है। See, there are various spirits. बहुत सी आत्माएं हैं, Today, there are such strange spirits. अजीब अजीब सी आत्माएं को हम चारों तरफ देखते हैं। Now, the Bible says, बाइबल बताती है, do not usurp authority over a man. एक महिला को पुरुषों के ऊपर अधिकार नहीं है। Suppose one of these girls comes up to this platform मान लीजिए कोई लड़की यहाँ ऊपर प्लेटफॉर्म पे आती है and said, और कहती है you sit down, God asked me to preach. कि आप बैठ जाइए, परमेश्वर ने मुझे कहा है प्रचार करने के लिए। I will tell that girl, मैं उस लड़की से कहूंगा, the Spirit of God is not leading you, but the devil is leading you. परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रही बल्कि शैतान की आत्मा कर रही है, Because क्योंकि the word of God is clear. परमेश्वर का वचन साफ है। And in many houses, और बहुत से घरों में there is no balance. वहां पे संतुलन नहीं है। You see, आप देखें, recently a family got offended when I preached in the United States. हाल ही में जब मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा था तो एक परिवार नाराज हो गया। I said, what? मैंने कहा, क्यों? The awe of His presence, be in awe and sin not. परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए रहो और पाप ना करो।
Who wears the pants in your house? तुम्हारे घर में हर एक बातों में नियंत्रण और अधिकार कौन लेता है? You see, some people were upset. कुछ लोग बड़े दुखी हुए, निराश हुए। Probably in that house, the pants were in the wrong place. शायद उस घर में जो नियंत्रण था वो गलत हाथों में था। And I was hitting the nail on the head. और उनकी कमजोर नर्व को मैं दुखा रहा था, दबा रहा था। Listen. सुनो, No matter who gets offended, कोई भी नाराज भले ही हो जाए, the word of God is clear. परमेश्वर का वचन साफ है। Today there are many perverse spirits. बहुत सी भटकाने वाली टेढ़ी आत्माएं हैं। And you know, my dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, let me make this clear. मुझे इस बात को साफ करने दीजिए। Leadership नेतृत्व involves great discernment. नेतृत्व में बड़ी ही सोच और समझ की आवश्यकता And I होती है। must confess, और मुझे बताना होगा, I don't have that great discernment. वो बड़ी महान दूरदर्शिता मेरे अंदर नहीं। But I am crying to God. लेकिन मैं परमेश्वर के सामने रोता हूँ, पुकारता हूँ। What He shows me, I seek to do. जो वो मुझे दिखाते हैं मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। The visions He gives me, जो दर्शन वो मुझे देते हैं, I go right ahead into them. मैं उन दर्शनों के पीछे जाता हूँ। I don't like long-term, distant plans. मुझे बड़े दूरदर्शी बड़े बड़े प्लान को मैं पसंद नहीं करता। What God says has to be done. जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करना है, Pronto, immediate. तुरंत उसे पूरा करना है। And that's how I have operated. और इसी प्रकार से मैं चला हूँ। But what kind of person am I by nature? लेकिन स्वभाव से मैं कैसा व्यक्ति हूँ? A procrastinator. चीज़ों को टालने वाला, A person who would defer at time of decision. जो निर्णय को टालता रहता है। A slow mover. धीरे धीरे चलने वाला, A shallow thinker. एक छिछला सोच वाला, हल्की सोच वाला, That is me. वो मैं हूँ। But what did the Spirit of God do? लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? He awakened that dull, sluggish spirit. उस सोने वाली और सोती हुई आलसी आत्मा को वो जिलाती है, So that ताकि obedience, आज्ञा पालन, action, काम करने की चीज, performance of duty, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाली बात। what is the use of doing God's will 10 years later? 10 साल बाद अगर आप परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं तो उसमें क्या फायदा? There are many people like that. बहुत से ऐसे लोग हैं, They just say tomorrow, वो कहते हैं कि अरे कल करेंगे, maybe next year, अगले साल करेंगे, maybe later. लेकिन बाद में My करेंगे। dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, today आज that is one of those perverse spirits. वो एक ऐसी टेढ़ी आत्मा है जो ऐसा करने को कहती है। I have found मैंने पाया है, if sacrifice has to be made, it must be made quickly. अगर कोई बलिदान चढ़ाना है तो उसे जल्दी चढ़ाने की जरूरत है। If your Isaac has to be brought to the altar, it must be done. अगर तुम्हारे इसहाक को वेदी पर लाना है तो उसे लाना होगा। If you defer it, it becomes harder and harder and harder. जितना आप उसे रोकेंगे, टालेंगे तो आपके लिए और मुश्किल होता चला जाएगा। My. मेरा 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 I could have ended my life with a sheer waste. मैं अपने जीवन में इस प्रकार से मैं नाश हो गया होता। That was me. ऐसा मैं था। That was what I would have done with my life. मैंने अपने जीवन से ऐसा किया होता। But the Spirit of God, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने He took hold of. उसने मेरे ऊपर नियंत्रण He लिया, broke me. मुझे तोड़ा। He gave me His Spirit. अपनी आत्मा परमेश्वर ने मुझे दी And that Spirit began to guide me. और वो आत्मा मेरी अगुवाई करने लगी। That's all I want till the end of my day. और अपने जीवन के अंत तक मैं यही चाहूंगा। Take away anything from me. मेरे से कुछ भी आप ले लीजिए, It won't matter. लेकिन एक चीज So, है you know, my friend, मेरे दोस्तों, when people lose their suitcase or something, they have a near heart attack. लोगों को अगर बक्सा या सूटकेस चोरी हो जाए तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। Well, I have lost my suitcases several times. मैंने कई बार अपने सूटकेसों को खोया है। Sometimes I recovered them, sometimes I never saw them again. कई बार मुझे वो मिल गए और कई बार नहीं भी मिले।
what do these earthly things really mean or beget? लेकिन ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं इनसे असली में क्या कुछ लाभ हो सकता है? Earthly possessions, हमारे दुनियादारी के ये धन संपत्ति they है, are static. वो केवल कुछ समय की है। Eternal investment, लेकिन अनंत काल की जो बातें हैं, 10,000 times interest. वो 10,000 गुना उस पे हमको सूद They मिलता है, multiply. उसमें बढ़ोतरी होती है। That is the eternal interest. अनंत काल का जो सूद How मिलता I है, praise God. मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। There are so many challenges before us. बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। You know, cancer is one of those challenges. कैंसर उनमें से एक बड़ी चुनौती है। Some have been healed, कुछ लोग चंगे हुए, some have not been healed. कुछ चंगे नहीं हुए। Just yesterday, I was told कल मुझे बताया गया that a woman who was given only 2 weeks to live कि एक औरत को बोला था कि तू 2 हफ्ते ही came to जिएगी। our meetings in Palamkota पालमकोट में हमारी सभा में गई and approached me for prayer. और मेरे पास प्रार्थना के लिए आई। You know, when I pray for such a serious case, जब ऐसे एक मुश्किल बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, I know perfectly that I can do nothing. मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं असली में मैं कुछ नहीं कर सकता। So my soul really looks to God. तो मेरी जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर देखती है। I heard that her throat cancer disappeared मैंने सुना कि उसका जो गले का कैंसर था वो चंगा हो गया and that 30 people from around her are here. और उसके आसपास के 30 लोग यहाँ पर हैं। Now that is the Lord's doing. That's not my doing at वो all. मेरा काम नहीं, वो प्रभु यीशु का काम है। If you are led by the Spirit, अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, we are going to do something that will be a blessing in this late hour of history. तो इतिहास के इस समय में वो बहुतों के लिए आशीष का काम होगी। But if you tutor yourself and tutor your children with a perverse spirit, लेकिन अगर आप और आपके बच्चे एक टेढ़ी आत्मा के चलाए चलते with हैं, worldly values, दुनियादारी के मूल्यों में चलते my हैं, dear friend, मेरे प्यारे लोगों, did not the Lord Jesus Christ say, it were good if that man had not been born? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि भला होता कि वो व्यक्ति ना जन्म लेता? May God help that God will never say that of you and me. परमेश्वर सहायता करने की परमेश्वर को हमारे विषय में ऐसा ना कहना पड़े। Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Let us pray. आइए प्रार्थना करें, Let us tell God, आइए परमेश्वर से हम कहें, Lord, प्रभु let not a perverse spirit take hold of me. प्रभु वो टेढ़ेपन की आत्मा मेरे नियंत्रण में ना Some ले। strange spirit, अजीब सी आत्मा, some misleading spirit, भरमाने वाली आत्मा, some worldly spirit, दुनियादारी की आत्मा, covetous spirit. लालच की आत्मा, Oh, give me discernment, O प्रभु Lord. मुझे परख करने वाली आत्मा दें। Oh, gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, to whom shall we go? हम किसके पास जाएं? Well, we think if there are a few people in the meeting, we are wonderful. सभा में कुछ लोग आते हैं तो हम सोचते हैं बड़ी अच्छी बात है, अद्भुत बात On Sunday, if the hall is full, we are wonderful. है। रविवार के दिन हॉल भरता है तो हम कहते हैं बड़ी अद्भुत बात है। We are a foolish people. हम तो मूर्ख लोग हैं प्रभु। Oh God, we don't want to be wandering stars, प्रभु जी, हम ऐसे भटकने वाले तारे बनना नहीं चाहते प्रभु। wells without water, ऐसे कुएं जिसमें पानी ना हो, clouds that bring no rain, ऐसे बादल जो बारिश ना कर सके, those who are twice dead, plucked up by the root. जो 2 बार मारे गए हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। Oh, save us, Lord. हमें आप बचाइए प्रभु, Save us from perverse spirit. हमें टेढ़ेपन की आत्मा से बचाइए। Oh, Lord, save us from perverse. हमें टेढ़ेपन की आत्मा से आप बचाइए प्रभु जी। Let us not run in such a way that you send your angel to stop us. हम ऐसे मार्गों में ना दौड़ने कि आपको अपने स्वर्गदूत को हमारा विरोध करने के लिए भेजना पड़े, With a drawn sword. हाथ में नंगी तलवार लिए। Oh God, हे प्रभु जी, teach us to do your हमें will. आपकी इच्छा पूरा करने वाला बनाइए। Oh gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, let our children learn to do your हमारे will. बच्चे आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बन सकें, Lord, not tomorrow, not next year, ना कल ना अगले साल,
Not 10 years from now, ना 10 साल बाद, but now. लेकिन अभी प्रभु जी Here we are. हम यहाँ पर हैं। Lord, give us of your right spirit. आपकी सही आत्मा हमें दें। Hear our prayer. हमारी प्रार्थना को सुने। In Jesus' holy name. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।